Kids, I'm very sorry. Due to some technical error, the Zoom meeting got ended randomly, and my phone was not supporting it later. So I'm just demonstrating the further thing what we have to do. Okay, so this cylinder, it is not yet dried thoroughly, so I'm not cutting it as of now. I'll be starting with the coloring part. So I have a brown color with me. So brown shade. If you don't have brown shade, as I had already conveyed to you, you can use any color of your choice. That is fine with me. I mean, fine, it will look beautiful because as I said, this is a fairy house, so it has to look beautiful with any of the color. So I'm just pouring a little bit of brown here. So I have a little bit of brown here. I'll take a little drop of water. Ideally, when we work with molded, we are not supposed to use water. We are supposed to apply the color directly. But here, the effect that I want to give will come only with water. Okay, so this is something which I am showing you for this effect only. Right, so you can use any color because I know you have the 6 color packet container with you, kit with you. So you can use any color of your choice. Don't leave any space blank. Color should be applied to each and every place out here. So this is just like a wash that I am giving. Diluted color. So here I am. So just applying this. So you can use any color of your choice. Again, I'm telling you that. So this is just a technique that I really wanted to share with you all. So I am recording this. Okay, so all over, in fact here also your color should go, okay, on the edges. It should not be left blank. Like that we need to color it. So once this is done, we will be coloring the stones. Okay, in the same technique we will be coloring our stones. Just with the help of your brush, just push the color inside those pores that we have created, the holes that we have created. उसके अंदर आपका कलर जाना चाहिए, जरूरी है, वरना वो जब आप आगे फर्दर उसको इफेक्ट दोगे तो वो क्या होगा कि वहां पे वो व्हाइट पैचेस दिखते रहेंगे. सो आपको ऐसे पोक करना है ऊपर से उसको, मतलब सारे जो ब्रश है, सारा जो ब्रश है अंदर तक जाए. ठीक है, द सेम वे आई एम डूइंग इट हियर. So it's just very diluted. You can see it's diluted color that I'm applying. Very light tone it is. Because otherwise आपका जो thick color है ना वो अंदर जाएगा नहीं. और अगर गया भी इसी मेथड से अगर आप पुश करो और वो गया अंदर, तो क्या होगा, वो वहां से ड्राई नहीं होगा क्विकली. एंड देन इट वोंट गिव यू, इट वॉन्ट ड्राई. और आप आगे जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ इसको कलर करने की, वो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज वो अंदर वाला कलर जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होता है. सो यू हैव टू गिव 1 होल डे फॉर ड्राइंग. ऐसा हो जाएगा वो. तो ये टेक्निक से वो क्विक मेथड हो जाता है हमारा. सो एक शेड आ गई अंदर के पोर्स में. सो दैट विल बी लाइक you can work with it finely. So now we will we'll start painting our roof. So I already have a pink one with me. So this time I'll change it into some other color. So maybe a blue one, blue roof. It can be any color. Your choice works well, I should say. So मैं यहाँ पे
ये कलर अप्लाई करूंगी इसको directly. Right, so I'm applying the color here. See how beautiful the blue color is looking. The same technique I'm using as of now here. मैंने ये diluted color यहाँ पे apply किया है. अगर आपके current इस पे आपने already thick color apply कर दिया है, no worries. ठीक है, आप वैसे कंटिन्यू करो, एब्सोल्युटली फाइन विद दैट. बट ये टेक्निक समझ लो, आप नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसे आर्टिकल बना रहे हो तो इट विल हेल्प यू. ठीक है, आइडियली अगेन आई एम रिपीटिंग, आइडियली व्हेन वी आर वर्किंग विथ molded, we are not supposed to use water. We are not supposed to use water. But this is something which I really, this is a different technique that I am sharing altogether. So ये हमने कलर, एजेस पे भी आपको कलर अप्लाई करना है. डोंट लीव द एजेस एम्प्टी. ठीक है, ऑल एजेस ऑल्सो नीड टू बी कवर्ड. सो हर जगह से आपको अप्लाई करना है, एजेस पे भी. राइट, सो दिस लुक कम्स डिफरेंट. थोड़ा मार्बल इफेक्ट ऐसे लगता है और वो पता नहीं चलता कि हमने क्या एग्जैक्टली यूज किया है उस पे. सो आई एम जस्ट लीविंग इट एज इट इज फॉर सम टाइम. तब तक आई विल कलर माई मशरूम्स ऑल्सो. लेट मी क्लीन माई ब्रश एंड हियर आई गो. So this time, because I'm using blue and brown, I'll do the mushrooms. Paint the mushrooms white and maybe yellow or maybe red. Right? So जो कलर उसके साथ अच्छा लगे आप वो कलर अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे मैं मशरूम के लिए थिक कलर अप्लाई कर रही हूँ. आई एम नॉट अप्लाइंग इट विथ वाटर. ऐसे. ठीक है, आपको बॉटम में उसको कलर देने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो बॉटम पेस्ट होने वाला है. सो वी विल बी जस्ट लीविंग इट एज इट इज. Okay, the same thing I'll be doing for my this also. So पहले मैं इसे कलर कर लूंगी, स्टेम को मशरूम के ऐसे. ऐसे इस तरीके से I'll be just coloring it white for the stems and then for the roof. Like that from all the sides. Okay, and then I'll use my red color only instead of yellow. I'll be using my red color only and I'll be giving the red to my mushrooms here. सो यहाँ पे मशरूम्स को सिर्फ ऊपर से, ऊपर की बाजू ही आपको कलर अप्लाई करना है. यू डोंट हैव टू गो एट द बॉटम. बॉटम उसका वो जो स्टेम है दैट विल रिमेन वाइट ओनली. ओके, सो नाइसली यू कैन कलर इट, अलाउ इट टू रेस्ट. अगेन ऑन द अदर वन. ये रैंडमली लगाओगे तो भी चलेगा. देयर इज नो हार्म इन दैट. ओके,
So one got a natural pink color. Now what I'll be doing, हमारा ये जो stones है वो थोड़ा अभी ड्राई हो गया है, ठीक है, बिकॉज हमने हल्का पानी उसमें लिया था, सो इट इज सेमी ड्राइड. So now what I'll be doing, I'll be taking little brown here. And I'll be applying, now this time I'm applying a thick layer. Now you can see वो pores में अगर color नहीं जा रहा है तो that is fine, as I had told you, that is absolutely fine. So अंदर वो बीच बीच में कहीं पे जाएगा कलर, कहीं पे ऐसे ही vacant रहेगा, that is fine, because वो उसका effect अलग से देगा आपको, right? So here we go. Randomly I am applying the color. साइमल्टेनियसली बिकॉज हमारा जो बेस है वो भी ब्राउन होने वाला है, तो हम यहाँ पे इसे ब्राउन कलर क्विकली अप्लाई कर देते हैं. ये भी एजेस पे आपको कलर अप्लाई करना है प्रॉपरली. Like that, nicely. ऐसे. Okay, all the edges should be covered properly, even if it is thicker or thinner, however. ओके, अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर कर रही हूँ. ओके, दिस टेक्निक, आपने एक बेस को नीचे दे दिया ऐसे, उसके बाद आप कर सकते हो, बट इफ यू डोंट वांट टू डू इट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा इससे ऐसे इफेक्ट जो है मेरे टी लाइट होल्डर में, ये थोड़ा रफ इफेक्ट है, राइट? सो वो रफ इफेक्ट कैसे देना है, दैट आई विल बी टीचिंग यू. सो आपको करना क्या है, आपको A+ ग्लू जो है आपका डाल देना है इसके ऊपर. ओके, A+ ग्लू ही यूज करो, उससे ही टेक्सचरिंग आएगी. या तो फिर ये फैब्रिक ग्लू से. सो फैब्रिक ग्लू आपको आपके पास है नहीं, सो आई एम स्पीकिंग अबाउट A+ ग्लू. और ये ऐसे टैप करो, कहीं कहीं पे मोटा, कहीं कहीं पे पतला, ऐसे आप करना है आपको, राइट? ये अभी आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट. वंस इट ड्राइज आउट, वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू सी ओनली द ब्राउन कलर विच यू गेव एट द बेस ऑफ इट. सो ये हमने ये इफेक्ट ऐसे दिया है यहाँ पे, राइट? सो ये आपको, आप ऐसे करने के बाद वो ऐसा थोड़ा रफ इफेक्ट दिखेगा आपको. ओके, तब तक वो थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसके ऊपर थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं. वी विल वर्क विद दिस. हमारा एक बेस कोड यहाँ पे हो गया है. सो व्हाट आई विल डू इज, ये ऐसे सिंपल प्लेन नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा सा हम व्हाइट लेंगे. ओके, हल्का सा व्हाइट लेंगे हम, और हमने यहाँ पे जो पैटर्न दी थी ना, हमें उसके ऊपर कलर लेना है. सो ये मेरा ब्राउन कलर भी इसके अंदर है. आई कैन यूज इट डायरेक्टली एज इट इज, बट बिकॉज मैंने आपको व्हाइट बोला है, सो लेट मी यूज द व्हाइट वन. ओके, सो दिस इज व्हाइट नाउ, राइट? सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, आई विल बी जस्ट रफली ऐसे, इनफैक्ट हाथ से भी अगर करो तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा सिर्फ कलर को टच करना है एजेस पे. ओके, ऑल एजेस यू नीड टू डू दिस.
नाउ दिस इज अगेन अप टू यू, अगर आपको करना है तो ये इफेक्ट दो, अदरवाइज यू कैन गिव अ गुड डार्क कलर, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल दीज डिटेल्स विथ यू. एंड योर तो इसका लुक कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है व्हेन वी गिव दिस हाईलाइट्स. ओके, दिस काइंड ऑफ हाईलाइट्स इफ वी गिव, इट लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट. ऐसे करेक्ट. थोड़ा और डार्क करना है तो भी आप कर सकते हो. इफ यू वांट टू कीप इट एज इट इज, दैट ऑल्सो कैन बी डन. सिर्फ ऐसे थिक कलर का बॉर्डर भी कर सकते हो. द सेम थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ. सिर्फ बॉर्डर पे आप कलर अप्लाई करोगे. द सेम वे जैसे मेरा ब्रश अभी घूम रहा है, बस वैसे ही आपको घूमना, ब्रश को मूव करना है. सो ओनली द एजेस कैन बी पेंटेड आउट नाइसली. ओके, दिस वे. सेम थिंग वी कैन डू हियर ऑल्सो. यहाँ पे ये ब्रश मोटा हो जाएगा, सो आई विल बी डूइंग विथ माय फिंगर्स. ठीक है. सो ये थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट जो है वो स्नो काइंड ऑफ इफेक्ट आपको मिलेगा, राइट. सो वंस दिस ड्राइज, देन वी विल बी मूविंग फर्दर विद द फाइनल टचअप्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट. बट व्हाट आई डू इज, अब हमारे मशरूम को हम डॉट्स दे देंगे, राइट. So I'm taking a different brush and I'm just applying dots of different sizes, small, big, ऐसे अलग अलग साइज के डॉट्स मैं मशरूम पे लगा दूंगी ऐसे. This is plain white that I have taken. बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़े थोड़े ही लगाने वाले हैं हम. बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें. ठीक है. जब तक ये ड्राई होता है, लेट मी टेक येलो कलर. नाउ ये जो सारा काम है वो ऑल नीड्स टू बी डन विथ द हेल्प ऑफ द फिंगर ओनली, जो मैं अभी आपको टेक्निक बता रही हूँ. नाउ आई एम टेकिंग द येलो कलर और ये स्टोन्स पे आई एम जस्ट रबिंग इट लिटिल बिट. ओके, कैन यू सी जो हमारा जो पोर्स हमने दिखाए थे वो हाईलाइट होना शुरू हो गया. सो दैट वी नीड टू डू. सो आई एम जस्ट टेकिंग मोर येलो एंड एक्स्ट्रा निकाल के आई एम जस्ट अप्लाइंग इट हियर. सो द ओवरऑल लुक ऑफ योर प्रोजेक्ट लुक्स वेरी प्रोफेशनल इफ यू डू ऑल दिस, है ना. और कुछ अलग टेक्निक भी आप यूज कर रहे हो तो सी द स्टोन, इट्स लुकिंग लाइक अ स्टोन, एक्चुअल स्टोन. फिर थोड़ा सा टिप पे हम व्हाइट लेके आई एम जस्ट कीपिंग इट. ऐसे मेरा ये स्टोन जाने वाले हैं ऐसे. ओके, हमारे हाउस पे एज इन द बैकग्राउंड पे. तो मैं ये थोड़ा सा मैंने व्हाइट कलर लिया है ऑन द टिप्स. आई एम जस्ट अप्लाइंग इट रैंडमली समवेयर, हल्का हल्का सा, just to give the highlights. Alright, so this is done. This is done. And once this dries out, we will be pasting this on top of our board. Meanwhile it is drying. तो ये मैं यहाँ पे जो portion है, I am just cutting it out. Very slowly I'll be doing this cut work. सो ये ऐसे मेरा वो कट वर्क हो गया. सो दिस इज द स्लॉट दैट आई वांटेड फॉर द डोर. सो अभी मुझे कहीं पे अगर ये एजेस पे लगाना है, सो मैं ये थोड़ा अगेन आई एम अप्लाइंग द कलर विथ माई फिंगर्स ओनली. सो ये इसका इफेक्ट अलग आएगा, थोड़ा सा डार्क ऐसे. राइट. सो इससे थोड़ा सा डेप्थ दिखाई देता है प्रोजेक्ट्स में.
किसी भी प्रोजेक्ट में आप जब कर रहे हो उसमें, तो दैट इज द रीजन यू कैन जस्ट वर्क विद दिस लाइक दैट। वैसे ही हम थोड़ा सा व्हाइट लेके भी एजेस ऐसे सिर्फ टैप कर रही हूं मैं कलर को, तो वो थोड़ा डिफरेंस भी दिखाई देगा। थोड़ा सा यहाँ बॉटम में भी like that. Correct? So see the difference of the project as well. Once this dries, अभी ये fully dry नहीं हुआ है, तो I'll take a little bit of yellow. ये portion जहाँ dried है, I'll just show you what can be done. Little bit of yellow in my fingertips, and I'll be just doing this. हल्का सा white, and I'll be giving this effect. तो वो rough effect आपको दिखेगा, right? If you must be having green also with you, sap green. So वो sap green ले सकते हो. Take the sap green on the tips of your finger and just ऐसे साइड से ऐसे हल्के से आपको उसको रब करना है। ऐसे माउंटेन के बेस का इफेक्ट आपको देने के लिए पॉसिबल हो जाएगा। वेरी लिटिल कलर्स, ये नॉट इवन अ ड्रॉप इट वाज, आई एम जस्ट अप्लाइंग इट, सो दिस गिव्स यू अ गुड effect of the mountain. That. Right, so this is not dried, I'm not doing more on that, फिर वो merge हो जाएगा, so let it be as it is. And then what I'm doing is I'll be pasting my the cylinder on my base. So how I'll be applying this, I'll be sticking this is with the help of the glue again. So अभी मैं यहाँ पे नीचे के साइड glue लगाऊंगी इसको. I won't be putting the glue on the board because मुझे वो सर्कल का कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा ना कि कितना ये सिलेंडर का साइज है. So what I'll be doing is I'll apply it here only on the edge nicely. This time we are applying a good amount of glue, and then I'll be placing it on my board nicely. Okay, so it will dry in some time. Meanwhile what we will be doing is we will be just placing these here. Okay, so ये सब यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे. पेस्ट करना है हमें. Okay, so the mushrooms also. थोड़ा आगे पीछे ऐसा. And here we are almost on the edge to complete our project. Fine. And this stone I can place it here so that वो balancing भी हो जाएगा. पूरा वजन एक साइड ही ना आए. So we need to balance it as well. So ये हमारा balancing work भी खत्म हो जाएगा. यहाँ पे कोई problem नहीं आएगी. So I'm just putting it this way. And our house is ready. So I'll just show you how it looks. This is not dried yet, but yeah, I can show you this way. Saw the overall look of this fairy house. See. So here it goes. The cap of our fairy house. So if you have some sparkling colors and all, you can apply it here. उसे थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए आप वो कर सकते हो. ठीक है. और इसके अंदर जब आप कैंडल लगाते हो तो वो बहुत अच्छे से ऐसे झरोके के टाइप लाइट आ जाती है. ओके, सो किड्स, डू शेयर द पिक्चर्स विद धनश्री मैम.
ओके आपके मटेरियल का भी पिक्चर चाहिए मुझे, आपके मटेरियल का एज वेल एज आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट इसका भी चाहिए, आर्टिकल्स का भी फोटोज चाहिए. बोथ द आर्टिकल्स आर नेसेसरी. वंस यू सबमिट द आर्टिकल्स, आई एम गिविंग यू 3 days का टाइम फॉर दिस. आपका काम जैसे हो जाता है, आपको मटेरियल, आपको फोटोज भेजने हैं धनश्री मैम को, एंड देन वी विल बी गिविंग यू ई-सर्टिफिकेट का लिंक एंड यू कैन गेट योर ई-सर्टिफिकेट देयर. Okay, but दोनों भी project submission is important. Fine. So thank you so much. Right. And whatever it is, I'll be keeping Dhanashree ma'am updated about it. Thank you so much, kids.